Good morning, ma'am. Good afternoon. It's Good afternoon. morning, ma'am. It's afternoon now. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good Good afternoon. afternoon. What was the Good last afternoon, topic ma'am. I Good discussed afternoon. with you? Percentage error, I think, no? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Okay. From there, I will continue. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So I think many have already joined. So let us start taking the attendance. Ashi, Present, ma'am. Kaushik, Present, ma'am. Akash, Aniket, Present, ma'am. Vishwas, Aniket Acha, Vishwas, no, ma'am. No, ma'am. Aniket Sharma, Present, ma'am. Aniket Singh, Present, ma'am. Apurva Kundu, Present, ma'am. Man Singh, Yes, ma'am. Par, Present, ma'am. Bhavya, Present, ma'am. Chandri, Present, ma'am. Harshanjal, Yes, ma'am. Himanshu, Present, ma'am. Jagriti, Present, ma'am. Ajal, Present, ma'am. Krishna Prasad, Ma'am. Prito Present, ma'am. Madhvi, Present, ma'am. Aina Ghosh, Present, ma'am. Manish, Ma'am. Avonita, Present, ma'am. Pragyan, Present, ma'am. Prakriti, Prakriti Prakash, Rishika, Present, ma'am. Rohit Paswan, Present, ma'am. Rucha, Samudra, Present, ma'am. Kayon, Present, ma'am. Anthony, Present, ma'am. Shreya, Present, ma'am. Shubham Sharma, Neha Chaudhary, Present, ma'am. Shobhika, Present, ma'am. Srishti Prasad, Present, ma'am. Shubham Shah, Present, ma'am. Shubhajit Das, Yes, ma'am. Sugyan, Yes, ma'am. Sujoy, Present, ma'am. Tuhin, Yes, ma'am. Udit, Yes, ma'am. Vivek, Present, ma'am. Ted, Present, ma'am. Ma'am. Ankita Gupta has joined. Has Ankita Gupta joined? Yes, ma'am. Anurit Kashyap, we cannot see. Just a minute. हाँ बोलो आकाश. Ma'am, my mic was not working earlier, so I have marked your attendance. Don't worry. Okay. Orko okay. Kormuk has joined. Orko. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I have joined. Okay. Arpan Ma'am, Par. मेरा mark. Yes, ma'am. Present, ma'am. Okay.
Dhruv has not joined. I cannot see Dhruv. Pratham Haldar. No. Rohit Bishwas. No. Shomrit Banerjee has not joined. Shubhrajit Barua. He has sent some message, I think. So 45 are present, 6 are absent today again. Anurit, Dhruv, Pratham Haldar, Rohit Bishwas, Shomrit Banerjee and Shubhrajit Barua. What did you have in the previous period, Sugyan? मैम इससे पहले तो इंग्लिश था लेकिन हुआ नहीं। इंग्लिश हुआ नहीं। और उसके पहले? मैम उससे पहले केमिस्ट्री हुआ था। तो केमिस्ट्री में कितने लोग प्रेजेंट थे? मैम केमिस्ट्री में 41 या 42 बच्चे थे मैम। तो why this is the condition? अगर साइंस पढ़ना है तो you have to attend the classes. Class 11C, this is a very bad representation of your class. 6 students are absent today. Why? ऐसा नहीं चलेगा ना। आप लोग को रेगुलर, एक तो ऑनलाइन क्लास हो रहा है, घर बैठ के क्लास कर रहे हो, उसमें भी आप लोग नहीं आना चाहते हो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मोइना घोष, मोइना घोष, हाँ तुम्हारा पुराना काम सब कंप्लीट है कि नहीं? नो मैम, काम कंप्लीट नहीं है मैम, मैं कर लूंगा मैम। कर लोगे, सब फ्यूचर टेंस में रहने से नहीं चलेगा। यू हैव टू बी प्रेजेंट टेंस। ये नॉलेज मैम वो पक्का, इसलिए मैं नहीं कर पाया, ऑपरेशन हुआ तो इसलिए नहीं कर पाया। हाँ, काम खत्म करना है। यस नेहा मैम। चौधरी, Present, ma'am. Present. your work's complete? Your work's complete? No, ma'am. Previous work is left. हाँ, ये लेफ्ट होने Previous से पूरा class. लेफ्ट ही रह जाएगा। लेफ्ट रहते रहते मैम लेफ्ट कर जाएंगे मार्क्स देने में। मैम हाँ बोलो अनिकेत। मैम अचानक यहाँ पे करंट चला गया घर में, मैं सडनली सब कुछ शट डाउन हो चुका है, कंप्यूटर वाईफाई जो था। मैम अब देख रहा हूँ मैम, मैं नॉर्मल इंटरनेट से ट्राई कर रहा हूँ कनेक्ट होने का। ओके ओके, मोबाइल डाटा से अगर हो जाता है तो कर लो, नहीं तो फिर तो कोई देयर इज नो अदर। हाँ मैम मैं कर रहा हूँ मैम, आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उन्होंने कहा है 5-10 मिनट थोड़ा सा लगेगा, कुछ इश्यूज हुआ है, सॉल्व हो जाएगा। मैम लाइन आ गया मैम। लाइन आ गया? आ गया है, 1 सेकंड। हाँ आ गया, चेक कर। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक दो शायद फिर से ज्वाइन किए क्या? अभी 47 दिख रहे हैं स्टूडेंट्स। यस मैम, मैंने ज्वाइन किया। कौन है? मैं मतलब मैंने कौन? मैम प्रथम। प्रथम मैंने भी ज्वाइन किया। यस मैम। जस्ट अ मिनट। ये आप लोग टाइम पे ज्वाइन करो, 5-10 मिनट तो पूरा अटेंडेंस लेने में चला जाएगा मेरा। फिर हर रोज ऐसा चलेगा तो बड़ा मुश्किल है। हैं? अनुरित काश्यपी, ठीक है ना? या आई कैन सी अनुरित एंड प्रथम हलदार, राइट? यस मैम। Pratham Haldar. Prakriti Prakash, you are there? You had left the meeting? Okay, you are there. Alright, so let us come back to what we were discussing. Different types of errors. We have discussed about the absolute error. We have discussed about the relative error as well as the percentage error. And now we will study how to combine the errors. Now in physical quantity, whichever you have, usually it is a summation or the difference or the product or maybe the quotient of different quantities. In that case, how you combine the errors, that I will show you now. Okay? ठीक है? अच्छा, अब बताओ मेरे को, just let me present the screen first. Just tell me whether you're able to see my screen or not. दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। Yeah. Combination of errors we are going to discuss now. थोड़ा ध्यान दे यहाँ पे. Now, how the errors are combined, for example, we are going to discuss here. There may be many quantities, which may be the summation, that is what I told you, maybe the difference, maybe the product, or maybe the quotient. So now let us see, for example, suppose density, we know
Density is what? Mass per unit volume, isn't it? The expression is m by v. So there may be error in the measurement of mass, there may be error in the measurement of volume, and you are supposed to find out the error in the measurement of densities. Then how do we do it? Let's see here. So there will be an error in the density. This is what I told you now. सबसे पहले हम लोग discuss करेंगे error of a sum. Suppose there is a certain quantity and it is a sum of two quantities. Error of the sum is the sum of the individual errors. ठीक है, समझ में आया? Hello. Ma'am, can you explain it once Yes, again? ma'am. अब कैसे आता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे. देखो, these are the two physical quantities A and B. सुनाई दे रहा है कि नहीं? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. And the measured values are plus minus delta A and B plus minus delta B. मतलब delta और delta B क्या है? Errors है. Delta I told you ना, difference. Delta A and delta B are the errors. क्या errors? What errors? Absolute errors. ठीक है? अब देखो, the quantity our aim is to find out the error involved in the measurement of Z, which is the sum of two quantities A and B. अब देखो, तो हमको एरर क्या होगा? Z का error involved in the measurement of Z will be plus minus Z. So that should be equal to A plus minus delta A plus B plus minus delta B. And now we bring the terms together, A plus B and then plus minus delta A plus minus delta B. So then you can guess the error involved in the measurement of Z will be the sum of the errors involved in the measurement of A and B. देखो, ठीक है, ये जो भी बोला मैंने, देखा? हेलो. Yes, ma'am. So what do we do with the errors then? What do we do with the errors? If you have a quantity which is sum of the two quantities, the error involved will be the sum of the individual errors. देखा? हेलो. Yes. Yes, ma'am. तो आ गया हमारा डेल्टा Z. डेल्टा Z is delta A plus delta B. Similarly, error of a difference will also be delta A plus delta B. देखोगे अभी, ठीक है? देखो, when two quantities are added, I will give you the rules. अभी कुछ नहीं लिखना है. The absolute error in the final result is the sum of the individual errors. समझ में आया कि नहीं? देख लो अच्छे से. आया? Yes, ma'am. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. Error of a difference. देखो, same way, वहाँ भी errors add ही होंगे. देखो कैसे. वहाँ पे usually the common mistake the students commit are, what do? They subtract the errors. No, difference. If a quantity is a difference of two quantities, then also error involved in the measurement of that quantity will be the sum of the individual errors. Errors को add करना होगा. देखो, देखो, देखा? ये क्या किया? ये समझ में आया? माइनस प्लस क्यों हुआ? कौन बताएगा? वो माइनस. हाँ, माइनस प्लस इज माइनस, माइनस माइनस इज प्लस, इसलिए साइन थोड़ा उल्टा कर दिया. देखो यहाँ पे भी ऐड हो गया. ठीक है? सो इफ यू हैव a quantity which is the difference of two quantities, then error is also to be added. Error is to be added. ये ध्यान रखना है. ठीक है? Whether it is sum or whether it is difference, errors are always to be added. देखो, ठीक है? When two quantities are subtracted, the absolute error in the final result is sum of the individual errors. So you will write this. दिख रहा है स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज का हाँ बोलो. Any problem? हेलो. No, ma'am. आज का डेट डालिए. अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. सम और डिफरेंस को डिस्कस करके फिर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन करेंगे. प्लीज राइट. आप लोग कुछ लोग हैं बिल्कुल नहीं लिखते हो, पढ़े जाओगे. सबको कॉपी जमा करना है एंड आई एम गोइंग टू कीप अ रिकॉर्ड. आई कीप अ रिकॉर्ड ऑलवेज. ये दोनों को कंबाइन कर दे रहे हैं हम.
Then I will dictate. Heading लिखो, उसके बाद हम dictate करेंगे. हुआ heading लिखना? No, ma'am. चलो लिखो. When two quantities are added, see that you write correct spelling. कोई spelling नहीं आता तो मेरे से पूछो. गलत spelling नहीं लिखना class 11 science students. When Yeah, two one second. quantities, हाँ बोलो. Hello. Any problem? Yes, ma'am. Continue, ma'am. When two quantities are added or subtracted, when two quantities are added or subtracted, S-U-B-R-A-C-T-E-D, बहुत लोग बीच में एक S लगा देते हैं, subtraction बोलते हैं, वो गलत है. Subtracted, S-U-B-T-R-A-C-T-E-D, subtracted, the absolute error in the final result, the absolute error in the final result is the sum of sum of the absolute error, the sum of the absolute error in the individual quantities, in the individual quantities. लिखा? Yes, ma'am. हाँ, आशी थोड़ा read Yes, करो. ma'am. क्या लिखा? आशी, Yes, ma'am. please read. धीरे-धीरे पढ़ना, सबको सुनाई दे. When two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the absolute error in the individual quantities. Right. ठीक है, बिल्कुल सही. अब आगे देखो. ये थोड़ा समझना है. क्या? When you multiply two quantities, isn't it? For example, area. Area is what? Length into breadth. Correct? Into breath. Yes. Volume is what? Length into breadth into height. तो यहाँ पे दो ही quantities लिखा है A and B, and their errors are delta A and delta B. So we want to find out the error involved in the measurement of Z, where Z is equal to A into B. देखो, इसमें relative errors निकालेंगे, बहुत ध्यान रखना. पिछले वाले में absolute error निकाला है, इसमें relative error निकालेंगे. देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम है? मल्टीप्लिकेशन आता है ना सबको? Yes, हेलो? ma'am. Yes, ma'am. इसमें कोई Yes, किसी को प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो Z से पूरा डिवाइड करके. See here. ठीक है, देखा? Now what is this? This is a very small quantity. Suppose error involved in the measurement of A is 0.1. Error involved in the measurement of B is 0.2. So 0.1 into 0.2 is what? 0.02. And then divide by AB तो और छोटा हो जाएगा. तो ये जो लास्ट क्वांटिटी है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं. अब देखो, देखा? ये क्या Yes, है? Relative error in the measurement of Z is equal to relative error in the measurement of A plus relative error in the measurement of B. So what we are doing in the product में क्या करना है? Relative errors को into करना है. हाँ, relative error को ऐड करना है. देखो ना, delta B by B plus delta A by A. See here. This is what I was telling you. When you have product of two quantities, the relative error in the measurement of that quantity is the sum of the relative errors of the individual quantities. Okay, this is what I was telling you. ठीक है? देखा? Yes, Hello. ma'am.
अच्छा, Yes, और एक ma'am. चीज अभी बताते हैं, ये लिखना नहीं है, आप लोगों को समझना है, अभी कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है? डोंट राइट नाउ, आई विल एक्सप्लेन एंड देन यू विल राइट। यू हेडिंग यू कैन पुट, हेडिंग डाल दो। अभी हम लोग एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वेश्चन करेंगे। प्रोडक्ट तो मैंने बता दिया, लिखिए, हेडिंग लिखिए, फिर क्वेश्चन हम समझाएंगे आप लोगों को। प्रोडक्ट तो मैंने समझा दिया, हेडिंग लिखो, फिर क्वेश्चन समझाएंगे, फिर देन आई विल गिव यू द रूल। लिखा हेडिंग, क्वेश्चन मतलब समझते हो ना, डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज। Yes, ma'am. प्रोडक्ट इज मल्टीप्लिकेशन एंड क्वोशिएंट इज डिवीजन व्हेन यू टू क्वांटिटी, जैसे मास बाय वॉल्यूम भी किया जो हम लोगों ने, डेंसिटी। Can you wait for us? अच्छा, अब देखो, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, वेट, इसी में लिख दोगे आप लोग, ये समझो। अभी हम लोग ने क्या लिया, z is equal to a into b, है ना? Yes, ma'am. इसका हम लोग ने रूल अभी निकाल लिया, है ना? क्या आया, डेल्टा z बाई z इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, है ना? ठीक है, अभी हम लोग लेते हैं कोशेंट a बाई b। इसके प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताओ, ये बचपन में किया होगा कभी आप लोगों ने। प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो गया प्रोडक्ट फॉर्म में? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बताओ क्या होगा? है ना? Yes, ma'am. तो ये भी क्या है, एरर्स हैव टू बी, रिलेटिव एरर्स हैव टू बी एडेड, Added. चाहे वो क्वोशिएंट हो, चाहे वो प्रोडक्ट है, आपको रिलेटिव एरर्स क्या करना है बताओ? Added. Add करना है. Add. जैसे एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस, एब्सोल्यूट एरर्स हैव टू बी Added. added, and product and sum again relative errors have to be Added. Added. added। चलो लिखो रूल, हेडिंग डाला कि नहीं? Yes, Yes, ma'am. देखिए, when two quantities are multiplied, when two quantities are multiplied or divided, when two quantities are multiplied or divided the relative error in the result, the relative error in the result is the sum of the relative errors in the multipliers। multipliers मतलब समझते हो, quantities, हाँ, multipliers का मतलब होता है quantities। I'm writing the Ma'am, can you repeat once again? right, I'll repeat, just a minute, it's better that you repeat, because when I'm repeating the sentence it might change, could be, I'm trying। when two quantities are multiplied or divided, देखा, Yes, ma'am. the relative error in the result is the sum of the relative errors in the multipliers। ये है multipliers, multipliers मतलब quantities, जिस quantity को आप लोग multiply कर रहे हो या divide कर रहे हो, ठीक है?
Yes, ma'am. अभी यही वाला रूल हम लोग यूज करेंगे when we find the error in case of a measured quantity raised to a power. जनरलाइज कर देंगे. मैम हेडिंग लिखो, उसके बाद हम समझे. हाँ बोलो. मैम इसका लास्ट वाला लाइन आपने क्या बोला मैम? द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट, उसके बाद is the sum of the relative errors in the multipliers. Multipliers means जो क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर्स. ठीक है? ओके ओके मैम. ज्ञान. ओके ओके मैम. ओके. अभी हम लोग ये वाला करेंगे, पावर्स का जो क्वांटिटी होने से तब क्या करते हैं. रुको. जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. क्या है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब? बताओ. S into S into. हाँ, नहीं तो एल क्यूब बोलते हैं ना, एल क्यूब. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्या हो रहा है भाई? तो उसी का हम लोग अभी निकालेंगे. पहले हम समझाएंगे, उसके बाद आप लिखोगे. अभी जस्ट हेडिंग लिखो. If you are not able to understand my handwriting, बोलोगे. गलत गलत नहीं लिखना है कॉपी में. I am trying to write so that it is legible to you. लिखा? Yes, ma'am. अभी लिखोगे नहीं कुछ, अभी समझो पहले. हाँ, हेलो. सपोज z इज इक्वल टू a क्यूब. इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डेल्टा z बाई z क्या होगा? जो अभी लिखा है वही वही चीज हम कर रहे हैं. मैम ये लिखना है. अभी हम लोग ने किया है ना प्रोडक्ट. Yes. वही वही कर रहे हैं हम. प्रोडक्ट रूल ही यूज कर रहे हैं. देखो तो ये क्या हो गया? 3 delta A plus. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. तो यही वाला रूल हम करेंगे और जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे. ये तो 3 था, n हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है. तो यही वाला रूल हम लोग यूज करके करेंगे. ठीक है? This I have written just now to explain you. That's it. Okay? अभी जनरल एक्सप्रेशन का हम लोग लिखेंगे. तो we take a general expression और ये बहुत काम आएगा आपको न्यूमेरिकल्स करने में. Let z is equal to, this is the most general form. अभी आप ही बताओगे. ये स्मॉल p है, a raised to p, b raised to q, और नीचे भी एक क्वांटिटी लिख देते हैं c raised to r. ठीक है? ओके. चलो देखते हैं कौन बता सकता है. बोलो. मैंने जो 3 एग्जांपल delta A दिया. by Delta A by A. How many times? How many times? 3 delta A by वहाँ पे 3 डेल्टा ए Ma'am. बाई ए हो गया था, तो यहाँ पे p टाइम्स हो जाएगा ना. Yes, ma'am. फिर Q times delta. या 3 delta B by B. और नीचे लेकिन है c, लेकिन वो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट Three. करेंगे? बताओ. Add. plus उसको भी delta ऐड करना है. डिवाइड करने से भी हम लोग को एरर्स को हमेशा क्या करना है? ऐड करना है. Add करना. ठीक है? ओके. Ma'am. प्लीज राइट डाउन.
आप लोगों ने सिग्निफिकेंट डिजिट्स किया है ना? Yes, ma'am. chemistry में? अच्छा ठीक है, तो आई कैन रश थ्रू द टॉपिक। ये हो गया लिखना? Yes, ma'am. हो गया। ओके, दैट्स ऑल वी हैव डन। ये भी हम लोग कर चुके हैं। मैम वो वाट फाइल और एक बार दिखाइए थोड़ा। हाँ मैम वो आपने जो लिखा वो वाला और एक बार दिखाइए। हाँ, श्योर श्योर। देखिए दिख रहा है ना? मैम ये वाला लिखना है क्या? हाँ ये जो आपने जो एग्जांपल दिया वो वाला लिखना हाँ है क्या? बिल्कुल लिखना है। अरे बोला तो मैंने लिखने के लिए, और पूछा भी कि लिखना हो गया। मैम हाँ बोलो। मैम मेरे पास एक क्वेश्चन है मैम, ये जो मतलब पावर जो दिया ना मैम, उसका एक क्वेश्चन है मैम, हाँ वो बोलो क्या बोलो बोलो। वो भी फिर ऐसे ही सॉल्व होगा मैम? क्वेश्चन ये है कि इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी हाँ x इज इक्वल्स टू a रूट b बाई c स्क्वायर्ड। हाँ, रूट बी मतलब क्या? बी रेस हाँ टू हाफ, बी हाँ रेस टू हाँ हाफ, तो डेल्टा ए बाई ए प्लस हाफ इंटू डेल्टा बी बाई बी, और प्लस टू डेल्टा नीचे c क्या बाई है? c। हाँ मैम नीचे स्क्वायर्ड है मैम। हाँ, तो टू डेल्टा सी बाई सी, एज सिंपल एज दैट। ओके मैम। ओके मैम मेरे को भी एक चीज पूछना है मैम। हाँ बोलो कृष्ण प्रसाद। मैं पूछ रहा था कि अगर क्वेश्चन में अगर बोला कहीं मिनिमम एरर निकाल रहे हैं या मैक्सिमम एरर, तो हम हाँ मतलब इसमें क्या करेंगे? प्लस या मतलब बीच में माइनस लेंगे या प्लस लेंगे ऐसा? जैसे कि वो बताओ, ये प्लस ही एग्जांपल रहेगा। बताओ। हम लोग हमेशा मैक्सिमम एरर ही निकालते हैं ना? हाँ ये मैम। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एरर बोल रहे हो या रिलेटिव एरर बोल रहे हो? मैम मेरा वाला रिलेटिव जो क्वेश्चन था उसके बाद भी है मैम, वो थोड़ा सा मैम उसमें दिया है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटीज ए बी सी आर 1%, 2% एंड राइट राइट 2% राइट, हाँ रेस्पेक्टिवली। अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड। परसेंटेज यस एरर से आप तो रिलेटिव एरर निकाल सकते हो ना? हाँ मैम। तो बस, क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अभी हम लोग जब एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। ओके मैम। ठीक है। ठीक है मैम। सृष्टि प्रसाद हैज लेफ्ट द मीटिंग। वही सृष्टि प्रसाद, आर यू देयर? सृष्टि प्रसाद। मैम मेरा नेटवर्क चला गया था मैम, इसलिए मैं फिर अभी अच्छा ज्वाइन। अच्छा अच्छा, हैव आई मार्क्ड योर अटेंडेंस? आई डोंट नो। तुम टाइम पे ज्वाइन की थी ना? यस मैम, मैं तो टाइम पे ज्वाइन की थी। या आई मार्क्ड योर अटेंडेंस, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब थोड़ा हम लोग ये देख लेते हैं, थोड़ा रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है? रिलेटिव डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने केमिस्ट्री में। हेलो। यस यस मैम। मैम, यस मैम। यस मैम। सिग्निफिकेंट यस फिगर्स मैम। का मतलब होता है जितने भी रिलायबल डिजिट, रिलायबल मतलब क्या? भरोसेदार है ना? और उसके साथ एक अनसर्टेन डिजिट, पहला अनसर्टेन, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रूल्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं उनको सिग्निफिकेंट पकड़ना है। You have to consider them as significant only. The zeros between any two non-zeros digits are always significant, and if the number is less than 1, then the zeros on the right of the decimal point, ये थोड़ा हम एग्जाम देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। टर्मिनल मतलब पीछे के zeros, they are not significant। एक डेसिमल नंबर में पीछे के zeros अगर हैं तो वो नॉन सिग्निफिकेंट हुए हैं, लेकिन कोई डेसिमल नंबर में अगर ट्रेलिंग zeros उनको सिग्निफिकेंट पकड़ना है। सो in order to follow the rule, what you should do, you should always write the number in scientific notation। हमेशा रूल क्या है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, फिर गड़बड़ नहीं होता है। ठीक है ना? आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस। आप लोगों ने किया है सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो आई एम जस्ट रशिंग पास्ट। लिखिए, लिख रहा है? यस मैम। यस अब मेरे को डायरेक्ट आंसर बोलोगी। हाँ, एट रैंडम आई विल गिव यू।
Time is over, but still, let me finish this off. So I can start with. मैम उसको लिखेंगे ना? हाँ बिल्कुल लिखना है। तो सारे जो रूल्स अभी मैंने डिस्कस किए वो क्लियर हो जाएंगे। नंबर क्या है? 4.308। तो कितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं? मैम 3। 3। लेकिन ये जो जीरो है ये बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स है, तो इसको सिग्निफिकेंट करेंगे या नहीं? नॉन सिग्निफिकेंट। हाँ, कितने हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4। गुड। अब देखो, आई एम गिविंग दिस एग्जांपल जस्ट टू मैम 6। हाँ, Four. यही समझाना था मेरे को। देखो मैम डेसिमल 4 के बाद जो zeros है before the non-zero digit, they are considered as what? Insignificant. They are not significant. यस मैम। हाँ, तो कितने हुए फिर? 4 मैम। हाँ, ये सेम नंबर से हम करा रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को ये सारे रूल्स इसमें कवर हो जाए। ये बताओ। मैम 4 हाँ, इसमें भी 4 है। ट्रेलिंग जीरोस in a non-decimal numbers are considered as non-significant। ठीक है ना? और एक एग्जांपल देते हैं। ये बताओ। 5 हो गया है ना? क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो है। मे बी यू आर यूजिंग सच एन इंस्ट्रूमेंट which can measure up to this place of the decimal depending upon the instrument of course। तो अब ये हो गया 5। ये थोड़ा रिलेटिव है, हमेशा 5 होगा जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स अगर निकालने के लिए, अगर हम इसको बदल देते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ व्हाट? बताओ, साइंटिफिक नोटेशन बताओ क्या होगा? इनटू बताओ 10 raised to the power -3 -6 minus 3 -3। अरे ये तो बुरा हाल है भाई आप लोगों का। बोलो। अरे मैम कौन किसका बोलना है? 4 नंबर का क्या? लास्ट वाला 10 पावर 10 का पावर क्या होगा? 4 +4। अरे ये सारे मैथ स्टूडेंट हैं, लग नहीं रहा मेरे को। बोलो, सब कहाँ चले गए? अरमान सिंह सो गया लगता है फोन ऑन करके। इतना बोलता था क्लास 9 में, बोलनी उसकी बंद हो गई। मैम -3 -3 होगा। कोई बोल रहा -3, कोई बोल रहा -4। आप लोगों को डेसिमल शिफ्ट करना नहीं आता? इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। हेलो, -3 ही होगा। -3 होगा। यस -3। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? यस मैम। अब ये हमने क्यों लिखा है, इसका मतलब why I put this 0? Can you tell? Means maybe there is an instrument which can measure up to 4 places of the decimal। अगर ऐसा है तब ये क्या होंगे? 5 होंगे। ठीक है ना? समझ में आया? यस मैम। हम यूज कर रहे हैं स्क्रू गेज, उसमें तो यहाँ तक नहीं आएगा। तब क्या हो जाएगा? 4 सिग्निफिकेंट। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, इज इट ओके? मैम यस मैम। जनरल रूल जो है the zeros, trailing zeros in a decimal number after a non-zero digit are significant, but the zeros which come before a non-zero digit
after the decimal are not significant. ठीक है? Is it okay? Yes, ma'am. This is a general rule. Yes, ma'am. Okay, that's all for today. Thank you. You can leave. Have a nice day, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. You can Thank leave. you, ma'am. Thank you. Have a nice day. Okay.